everyone. Today we are going to discuss about static quiz question of 19th October. Let's have a look. Nutrient-based subsidy के regarding a nutrient-based subsidy was introduced against earlier product-specific subsidy regime. क्या nutrient-based subsidy इस जो subsidy थी पहले product-based subsidy regime उसके against introduce की गई है. इसके अलावा गवर्नमेंट फिक्स्ड पर केजी सब्सिडी इस हिसाब से फिक्स करती है गवर्नमेंट फॉर ईच फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास एंड सल्फर. नंबर 3 लाइक सब्सिडी टू न्यूट्रिएंट कंटेंट एम टू प्रमोट बैलेंस फर्टिलाइजेशन. जो न्यूट्रिएंट कंटेंट को सब्सिडी दी गई है क्या वो बैलेंस फर्टिलाइजेशन प्रमोट करती है बाय डिस्करेजिंग farmers from applying too much DAP and MOP. How many of those statements are correct? I don't know. If you know, please mention the comment. Question number 2. Consider the following statement regarding negotiable warehouse receipt. It allows transfer of ownership of that commodity stored in warehouse without having to deliver the physical commodity. Number 2. They are issued by registered warehouse and enable farmer to seek loan from bank against negotiable warehouse receipt. Number 3. It is regulated by APEDA. How many of the above statements are correct? Okay, let's move to the crop is subtropical nature. Crop subtropical in nature है. लगभग 210 days require frost free days is required. Third frost is injurious to it. Only light rainfall 50 to 100 centimeter is preferred. It requires higher temperature and bright sunshine for its growth. These conditions hold good for which of the following crops? Jute, sugarcane, tea, cotton. Now I don't know. Focus is the first statement regarding the primary agriculture credit societies. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट जो फंड प्रोवाइड करती हैं सोसाइटीज. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आर विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज that serve as the last link in three-tier cooperative credit structure headed by the state cooperative banks at the state level. Number 2. Individual farmers are member of primary agriculture society and office bearers are elected from within them. A village can have only one primary agricultural credit society. How many of the above statements are correct? I don't know. Question number 5. Consider the following statement regarding coffee production in India. Coffee in India is grown under a canopy of thick natural shade in ecological sensitive region of Western and Eastern Ghats. Kerala is the leading producer of coffee in India. That can be true. The two main varieties of coffee grown in India are Arabica, Robusta. With Arabica type of coffee being produced more than Robusta type in the last decade, how many of those statements are correct? I don't know. So let's move to the answer. Question number 1. न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से रिगार्डिंग है तो ऑल थ्री आर करेक्ट. ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो जो पहले प्रोडक्ट बेस्ड सब्सिडी थी उसके अगेंस्ट लाई गई है. पहली बात कहाँ गया हाईलाइटर. ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो पर केजी सब्सिडी है फॉर ईच न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन पे, पर केजी पे, फॉस्फोरस पे, पोटास पे, सल्फर पे. ये क्या करेगा? बैलेंस करेगा फर्टिलाइजेशन को और डिस्करेज करेगा फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ज़्यादा अमोनियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं, म्यूरेट पोटास यूज़ करते हैं. नॉन प्राइस जो पॉलिसी रिकमेंडेशन होती है फॉर द खरीफ क्रॉप्स. तो जो ये 23 से 24 का सीजन है उसमें जो कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है उसमें उन्होंने रेकमेंड किया है. देखो जो खरीफ का जो सेशन है 23-24 का उसमें जो को ये जो होता है हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस उसने जो रिकमेंडेशन दी है उसने कहा है कि यूरिया को इसमें जो न्यू ये जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इसमें होना चाहिए यानी कि इस स्कीम में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए. उससे क्या होगा जो इन प्रॉब्लम जो है इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट यूजेज की एग्रीकल्चर में वो नहीं होगी. तो अगर हम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की बात करें तो बेसिकली क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आती है. ये जो है क्या कहते हैं इसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड
फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है, 65 की बनी थी। इसके अलावा जो इसका मिशन है, एक चेयरमैन होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, 1 ऑफिशियल मेंबर एंड 2 अनऑफिशियल मेंबर होते हैं इसमें। जनरल ओवरव्यू याद रखेंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसके लिए जो सेपरेट रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं रिगार्डिंग यानी कि रिकमेंडेशन फॉर प्राइस फॉर खरीफ एंड रबी सीजन, उनके लिए भी एक तरह से रिकमेंडेशन देते हैं। तो बेसिकली ये तो जैसे न्यू हमने ये देखा, इसमें यहाँ पे देख लिया, ये तो एक हल्का सा ओवरव्यू है चीज़ों का लेकर कि यूरिया है जो न्यू न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में नहीं आता। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, द गवर्नमेंट फिक्स है per kg subsidy for each fertilizer nutrient: nitrogen, phosphorus, potash, sulfur. This was against an earlier product-specific regime. Linking subsidy to nutrient content was intended to promote balanced fertilization by discouraging farmers from applying too much urea, DAP, and nitrate of potash. These are the fertilizers which contain, देखो suppose करें यूरिया, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है 46, सॉरी नाइट्रोजन की जो है वो है 46%, वेयर एवर जो DAP है इट कंसिस्ट phosphorus 46% and nitrogen only 18%, and the potash it contains 60% potash. So nutrient-based subsidy was expected to induce product innovation beside more use of complex fertilizers having lower concentration of in different portion. SSP contain only 60% this and 11% this. So basically क्या है, there is nothing, there is just overview कि हम जैसे अगर यूरिया की बात करें तो ज़्यादा नाइट्रोजन वाला सब्सटेंस है, अगर और ये एमओपी की बात करें तो उसमें पोटास 60% है, अगर डीएपी की बात करें तो उसमें 46% क्या है, पोटेशियम, ये phosphorus है. So this is the imbalance thing. If we can use something that can have the balanced nutrients level, that would be that that can have to go for only one product for the growth of the plant. Not farmer do not have to rely on the DAP separately, urea separately. So there is the expenditure on the in all that kind of product will also reduce if we can make some balanced nutrients in the products, any particular product. So this is the, let's move to the next question. The full statement regarding negotiable warehouses. Only 2 statements are correct and 3 are incorrect. Regulated by APEDA. It would not. 2007 की बात है. 2007 में एक एक्ट बनाया जाता है. उस एक्ट का नाम होता है वेयर हाउस डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 2007. वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007. और इस एक्ट पर ही एक स्टैच्यूटरी बॉडी क्रिएट की जाती है जिसका नाम होता है वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. ओके, ये किसका, ये क्या करेगी उसको इसके नाम से ही पता चल रहा है. ये एक इनिशिएटिव था. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका जो ये अथॉरिटी है, इसके अलावा जो ये है वेयर हाउस डेवलपिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. आई मीन अगर इसको स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसको बनाया गया था, देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव इट नीड टू फुलफिल, राइट. सो फर्स्ट इसका जो है वो है कि ये जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये इम्प्लीमेंट करेगी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीव सिस्टम को इन द कंट्री. अगर हम बात करें इसकी कि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ये जो पॉलिसी है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीप्ट वाला जो सिस्टम है वो कंट्री को अच्छे से इम्प्लीमेंट करे. इसके अलावा जो है कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ वेयर हाउसेज, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक वेयर हाउसिंग ऑफ फूड, improving fiduciary trust of depositors and banks, enhance liquidity in the rural area and promoting effective supply chain. ठीक है, यानी कि अब देखते हैं कि जैसे अभी हमने बात की कि enhancing liquidity in the rural area, how it will happen. एक बात पहले हम अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो ये वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी थी उसके अचीवमेंट क्या क्या हैं. 2021-22 तक
2022 तक 123 वेयर हाउसेज रजिस्टर हो चुके हैं अंडर दिस एंड 7975 17,975 ई नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट इशू हो चुकी हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं। 2007 का टाइम था। 2007 के टाइम पे एक एक्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 और इसी एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी बनाई जाती है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी दैट कम्स इन दिस स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या करेगी? रेगुलेट करेगी किसको? और इसके अलावा जितने भी ये जैसे रजिस्ट्रेशन होगा वेयर हाउसिंग का या प्रमोट करेगी लिक्विडिटी इन द जो किसानों में रूरल एरिया में उसको लिक्विडिटी को प्रमोट करेगी। जो नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट है उसको इश्यू करने के में इसका जो मेन रोल है उसमें है इसका मेन रोल। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो अथॉरिटी है वो कौन सी उसके डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। अथॉरिटी किसके अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिपार्टमेंट के अंदर ये आती है। ये हम याद रखेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा तो कुछ नहीं रह गया। नहीं, इसके अलावा हमने एक हल्की सी चीजें देख ली। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2011 में नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट इशू करना स्टार्ट किया। इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज था कि जो है ना जो फार्मर्स हैं वो लोन सीख कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक्स अगेंस्ट दिस वेयर हाउस रिसिप्ट इशूड बाय देम अगेंस्ट दिस स्टोरेज। सपोज करो एक वेयर हाउस है उसमें फार्मर्स की स्टोरेज है, राइट? तो वो जो स्टोरेज है ना उसके बिहाफ पे ये जो है आपको एक रिसिप्ट इशू की जाएगी। इसका नाम होगा नेशनल ये क्या सॉरी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ये जो वेयर हाउस इसके अगेंस्ट मतलब एक तरह से आप ये कोलेटरल की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट आप बैंक से लोन ले सकते हैं इसके लिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि बैंक के रूरल एरिया में बैंकों के पास फंड अवेलेबल होंगे फॉर मोर प्रोजेक्ट फर्दर एग्री आई मीन फर्दर जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा उनका भी वो कोई और बुआई वगैरह कर ले किसी और चीज में तब तक अपना इन्वेस्टमेंट कर ले पैसे आ जाए उनके पास। ओके तो आई थिंक दिस वाज इनफ। इन्होंने इसमें क्या बताया देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा नेगोशिएबल वेयर हाउस जैसे कुछ लॉन्च इन 2011 में अलाउ ट्रांसफर टू ओनरशिप ऑफ दैट कमोडिटी स्टोर जो कमोडिटी स्टोर इन द वेयर हाउस विदाउट हैविंग टू डिलीवर द फिजिकल कमोडिटी। उसमें फिजिकल कमोडिटी को डिलीवरी करने की जरूरत नहीं जिस ओनरशिप डिलीवर होती है। दीज रिसिप्ट आर इशू इन नेगोशिएबल फॉर्म मेकिंग देम एलिजिबल एज ए कोलेटरल फॉर लोन्स। ये हमने अभी देखा। वेयर हाउस रिसिप्ट आर मेड ऑफ नेगोशिएबल अंडर दिस एक्ट। ये जो वेयर हाउस रिसिप्ट है वो नेगोशिएबल किसी एक्ट के अंदर है अंडर दिस एक्ट एंड रेगुलेटेड बाय द वेयर हाउस डेवलपिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी was issued receipt was issued registered warehouse enable farmer to seek loan from the bank। देखो अगर ये रजिस्टर्ड वेयर हाउस के द्वारा इशू करी गई है और रजिस्टर कौन करता है? ये वाली अथॉरिटी को रजिस्टर करती है। द गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट फार्मर कैन यूज टू अवेल बैंक क्रेडिट इजीली एंड विदाउट फियर ऑफ लूजिंग एंड मिसयूजिंग इट। सो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इशू किया जाने लग गया है। नंबर 3 ये कॉटन की बात कर रहे थे यहाँ पे देखो सॉरी hard frost is injurious to cotton cultivation पहली बात। It requires about 210 frost free days give me a minute please। तो रेनफॉल मतलब लो रेनफॉल भी चलेगा। ओनली लाइट रेनफॉल 5 to 100 centimeters preferred for the cotton can also cultivate in under irrigated condition। okay high temperature and bright sunshine for its growth is required। so अब बात करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की। देखो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो एक कहानी है। एक गांव है रामपुर। उस रामपुर में रामू जी रहते हैं। रामू जी अपनी फसल की बुआई करना चाहते हैं। फिर उसमें भाई जैसे ये उनका खेत है इसमें उनको जुताई वगैरह यानी कि उसमें हल वल चलाना पड़ेगा पहले। फिर उसको इरिगेट करना पड़ेगा। फिर जैसे या फिर पहले भी इरिगेट कर देते हैं उसके बाद फिर उसमें सुखा के उसको फिर उसको हल्का हल्का उससे हल चलवा देते हैं ताकि उसको जो क्या हो जाए जो उसकी मिट्टी है थोड़ी ताकि उसमें सीड ग्रो करना जाए। फिर रामू जी सीड लेके आएंगे कहीं भी जो सीड वाले बैंक होते हैं वहां से। उन बैंकों को सीड वाले बैंक से फिर एक आदमी के पास जाएंगे जिसके पास ट्रैक्टर है और अदर इक्विपमेंट है जो बुआई कर सके। उसके पास गए आप उसको पैसे दिए
सीड लेके आए, उसको पैसे दिए। फिर जब इससे वो करवाया था भाई, इसको पहले ठीक करवाया था, जुतवाया था, उसको पैसे दिए, ठीक है। ठीक है। अब सर जी ने अपने से बुआई करनी है, वो करना है, ठीक है। अब जैसे बुआई भी कर दी, इन्होंने पैसे दे दिया। अब जैसे यूरिया, डीएपी इस तरह की चीज़ें चाहिए, क्योंकि जो सीड्स हैं उनको नाइट्रोजन भी चाहिए। यूरिया में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, 46 के आसपास होता है। उसको फास्फोरस भी चाहिए, ये जो है उसमें 46 फास्फोरस होता है डीएपी में। बाकी 18 के आसपास पोटेशियम भी होता है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं एमओपी में, उसमें 60% पोटेशियम होता है। तो इसके अलावा जैसे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस तरह की चीज़ें भी चाहिए, ताकि उसकी फसल मतलब एक टाइम पीरियड के साथ, लेकिन इनिशियली जितना भी खर्चा हो रहा है, जितना भी बुआई हो रही है, जितना भी सीड के जो परचेजिंग है, क्या है वो, इस कॉस्ट इज टू हाई, इस कॉस्ट कितनी है, टू हाई। तो रामू जी ने सोचा कि क्या मैं बैंक के पास जाऊँ। पहली बात, बैंक का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बैंक गांव से बहुत ज़्यादा दूर है, आप हर वक्त इतना ट्रैवल नहीं कर सकते। नंबर 3 कि जो कोलेटरल वगैरह है, आप क्या कोलेटरल देंगे, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं रामू जी को फेस करनी पड़ी। फिर एक शामू जी थी, शामू जी ने रामू जी को बताया, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए। हाँ, इसने कहा कि हाँ मैं बैंक से पैसे लेने की सोचा था, पर चीजें इतनी वो ना तो मुझे समझ आती है, ना ही कुछ आसान है। तो शामू जी ने कहा, ये क्या बात हुई, आप प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी तो पैसे ले सकते हैं। रामू जी को लग गया शौक, सच्ची ऐसा कुछ भी है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो प्रोसीजर क्या है? इन्होंने पूछा कैसे, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होती क्या है? तो देखिए, तो शामू जी ने कहा, देखियो, एक होती है स्टेट लेवल पर सोसाइटीज, कौन सी, कोऑपरेटिव बैंक होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ओके, रामू जी ने कहा ठीक है। फिर वो, उसके अलावा वो फंड प्रोवाइड करती हैं किसको, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, एक मिनट रुकिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को। एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, वो फंड प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को। और इनके नीचे, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है, और इनके नीचे जो फार्मर के सबसे ज्यादा क्लोज होती है, वो होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ओके, ये क्या होती है, विलेज 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी, द लास्ट लिंक और 3 टाइप स्ट्रक्चर। जो फार्मर्स होते हैं, श्यामू जी ने कहा, जो फार्मर्स होते हैं हमारी तरह, वो भी इनके मेंबर होते हैं, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होती हैं। इसमें ऑफिस को वो होल्ड करते हैं। इसके अलावा एक विलेज में एक से ज्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, जैसे कि हमारे विलेज में आप देख लें, लगभग 5 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी हमारे विलेज में है रामू भैया। और आपको इतना भी नहीं पता, इतने इम्पोर्टेंट जो ये इंस्टीट्यूशन है, आपको इसके बारे में भी नहीं पता। मैं तो उसका मेंबर भी हूँ, श्यामू जी ने कहा। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी शॉर्ट टर्म लोन देती हैं, जैसे कि अगर आपको क्रॉप, जैसे क्रॉप लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, लाइक क्रॉप लोन। जैसे कि हम जब स्टार्टिंग के पीरियड में हम चाहे सेल्स हो, फर्टिलाइजर हो, इन सब की रिक्वायरमेंट के लिए वहां से लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सोसाइटीज हैं शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। तो पहले हम इनकी, ए विलेज कैन हैव ओनली वन, नो, ज्यादा हो सकती है, तो इन्हें वाज करेक्ट। इंडिविजुअल फार्मर आर द मेंबर ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, दैट इज ट्रू। श्यामू भैया जो थे, याद रखना इसको, श्यामू भैया को, ऑफिस बेयर आर इलेक्टेड विद इन देम, राइट। हाँ, उनमें इलेक्ट होते हैं वो, इन्होंने जैसे लिखा भी ना, ऑफिस बेयर आर इलेक्टेड फ्रॉम विद इन देम। इसके अलावा जो प्राइमरी एग्रीकल्चर विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट माने पैसा, कोऑपरेटिव माने जैसे लोग मिलकर बनाते हैं, सोसाइटी जो प्रोवाइड कर रही है, दैट serve is the last link in the three-type cooperative credit structure headed by the state cooperative bank at the state level. That is true. तो रामू भैया और श्यामू भैया को याद रखिए, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी याद रखिए कि एक से ज्यादा हो सकती हैं। जो वहाँ उसके वो होते हैं, जो ऑफिस बेरर होते हैं, वो कौन होते हैं, जो उसके फार्मर्स, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट होते हैं ऑफिस बेरर भी। थ्री टाइप स्ट्रक्चर का जो स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हेल्ड करते हैं, ये सबसे लो लेवल का स्ट्रक्चर है, सबसे जो नीचे स्ट्रक्चर आता है, जो फार्मर के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। ओके, ये तो हमने 5। अब हमने देखा था क्या, कि जो ये क्या थी, कॉटन, कॉटन को एक मतलब इतनी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती, 5 टू 100 से ठीक है। हाई टेम्परेचर सनशाइन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करती है। हार्ड फ्रोस्ट अच्छी नहीं होती, लगभग 2 10 days इज रिक्वायर्ड फॉर द, एट लीस्ट 2 फ्रोस्ट फ्री डेज इज रिक्वायर्ड फॉर its production।
इसके अलावा जब हम बात करते हैं कॉफी की, कॉफी इन इंडिया ग्रो अंडर द, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो इसमें लिखा हुआ था, ओके, हम देखते हैं इसके बारे में कुछ। हाँ, एक बार क्या हुआ, दो लड़कियां थी, एक का नाम था करना, एक का नाम था टाका। कितनी लड़कियां थी, एक का नाम था करना, एक का नाम था टाका। टाका ने कहा, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉफी, इट्स प्रोडक्शन इन आवर स्टेट। तो करना ने कहा, ओके मैं बताती हूँ तुम्हें, मुझे कॉफी के बारे में क्या पता है। कॉफी जो है वो जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है, जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, उसमें ग्रो, मतलब उसमें ग्रो होती है अंडर द कैनोपी ऑफ थिक नेचुरल शेड इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ओके, अब दो तरह की वेराइटीज ऑफ कॉफी होती है इंडिया में ग्रो। नंबर एक अराबिका एंड नंबर टू रोबस्टा। या तो हम अराबिका और रोबस्टा भी नाम ले सकते, तो या हम मतलब एक स्टोरी क्रिएट करें ताकि हमारे दिमाग में कोई मेंटल इमेज क्रिएट हो सके। तो या तो हम ये मान लें कि दो लड़कियां थी, एक का नाम था अराबिका, या एक का नाम था रोबस्टा। ये दोनों आपस में बात कर रही थी कोई पर इसे चलो, या फिर आप ये करना ले रहे हो टगा ले ले, क्योंकि आपको याद रह जाएगा सबसे जो ज्यादा स्टेट है, जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का, वो कर्नाटका है। तो बेसिकली दो तरह की कॉफी ग्रो होती है। ट्रेडिशनली जो ज्यादा कौन सी ग्रो होती थी, अराबिका कॉफी ज्यादा ग्रो होती थी, लेकिन लास्ट के जो डिकेड्स है उसमें रोबस्टा कॉफी बीन्स आर ग्रोइंग सब्सटेंशियली ड्यू टू हाई ईयर, क्योंकि उसकी ज्यादा, उसमें पैदावार ज्यादा होती है, विच नाउ अकाउंट फॉर 60% प्रोडक्शन ऑफ कॉफी प्रोड्यूस इन इंडिया। जो ये रोबस्टा है लगभग 60% रोबस्टा प्रोड्यूस होती है इन इंडिया में। तो ये तो हमने देख लिया, इसमें तो कुछ छा भी नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि कॉटन के रिगार्डिंग देखा, कॉटन के रिगार्डिंग हमने क्या देखा, 2-10 डेज इसको चाहिए ही चाहिए। और भाई टेम्परेचर हाई होना चाहिए, थोड़ी सी सनसाइन होना चाहिए, हार्ड फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, 2-10 डेज फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए, बारिश 15 to 100 सेंटीमीटर से कम बारिश में भी चल जाएगा। सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होती है, जिसका नाम है कॉटन। बात करते हैं कॉफी की, दो तरह की कॉफीज होती हैं, एक रबक रबक्का एक होती है, मैं नाम भी भूल गई देखा, इसलिए कह रही थी मुझे अच्छे से नाम याद रखना चाहिए। ऑगस्टा और रबक्ता कुछ पता नहीं क्या थे, दोनों के नाम थे। कर्नाटक में ग्रो होती है, जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, थिक कॉफी के अंडर ये ग्रो होती है कॉफी। बात करेंगे 60% का जो शेयर है प्रोडक्शन का, उसने रबस्ता ने लिया हुआ है कॉफी प्रोडक्शन में, ठीक है, जो मतलब या फिर कुछ और नाम होगा, अगर गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ तो उसको। इसके अलावा हमने प्राइमरी एग्रीकल्चर देखी सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज देखी, उसके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सबसे नीचे कौन-सी होती है, जो डायरेक्ट फार्मर से लिंक होती है, फार्मर इसके मेंबर होते हैं, और इन मेंबर्स में से इलेक्टर होते हैं, इलेक्ट होते हैं, इसके जो भी वो हैं जो ऑफिशियल्स हैं। इस शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि इनिशियल फीस ऑफ जो क्रॉप, मतलब जो भी अगर आपको क्रॉप की बुआई वगैरह भी करनी है इनिशियली, सीड फर्टिलाइजर, इन सब के लिए लोन चाहिए होता है। रामू भैया और श्यामू भैया भी देख रहे थे जो आपस में बात करते, श्यामू भैया तो इनके मेंबर भी थे इसमें। रामू भैया इसे लोन लेने के लिए अब तैयारी कर रहे थे। ये तो हो गया, इसमें हमने क्या देखा था, इसके अलावा हमने देखा था ये वेयर हाउस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो किस एक्ट के अंदर बनी हुई है, वेयर हाउस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2007। इसका मेन काम क्या है, जो ये रिसिप्ट है, वेयर हाउस जो रिसिप्ट होती हैं, इसको जो उसको इशू करना, वेयर हाउस को रजिस्टर करना। 123 वेयर हाउस रजिस्टर हो चुके हैं, और जो रिसिप्ट इशू हुई हुई है वो लगभग 19,800 कुछ, इतनी सारी रिसिप्ट भी इशू हो चुकी है। बेसिकली रिसिप्ट इशू का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकती है, पहले पेपर फॉर्म में होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। इससे क्या होता है कि आप बिना आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को मूव किए बिना ही, जो डायरेक्टली है उस वेयर हाउस के, उसके भी हाउस के बदले एक रिसिप्ट ले सकते हैं, और फिर उसको एज कोलेटरल यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग लोन। तो ये क्या है, फंड ट्रांसफर लिक्विडिटी इंक्रीज करता है, उसमें उनके प्रोडक्शन में उनको हेल्प करता है, क्योंकि वो फंड ले सकते हैं ना अपने वेयर हाउस से, उसके जो वेयर हाउस के लिए उनको रिसिप्ट इशू हुई है। तो ये हमने देखा था 2011 में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्म एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2011 में ये रिसिप्ट इशू करना स्टार्ट किया गया था। ये हमने देख लिया। इसके अलावा हमने क्या देखा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था रिलेटेड टू व्हाट इट वाज रिलेटेड टू, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि रिलेट कैसे करा था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था डायरेक्टली, ओहो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल।
दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन शायद हो गए हैं हमारे शायद, लेकिन मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में याद नहीं कर, चार क्वेश्चन हो गए आई थिंक। मैं फर्स्ट क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वो भी कुछ सेंसिटिव सा टॉपिक था, मतलब थोड़ा हैवी टॉपिक ही था वो भी, जहाँ तक मैं याद करूँ। किससे का टॉपिक था वो? आ, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। न्यूट्रिएंट बेस्ड पॉलिसी के लिए था। सेंटर फॉर, ये क्या होता है, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, कोस्ट एंड प्राइस, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आते हैं। 1965 में बनी थी। 24 मेंबर होते हैं। मेंबर सेक्रेटरी 24 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, वन ऑफिशियल मेंबर, टू अनऑफिशियल मेंबर। ये इसकी वो थी। इसने कहा था कि भाई जो यूरिया बेस्ड सब्सिडी को भी क्या है, यूरिया को भी क्या है, इसे मिला देना चाहिए। नेशनल जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है पर केजी के हिसाब से, न्यूट्रिएंट के हिसाब से लगती है। हमने जैसे यूरिया में क्या देखा है, यूरिया में कितनी क्वांटिटी होती है, डीएपी में कितनी क्वांटिटी होती है, हम देख चुके हैं पहले। इसकी यही सब देखा था इसके अगेंस्ट हमने, राइट? इसके अलावा तो कुछ और नहीं था। मुझे अब और मुझे याद नहीं आ रहा कि और कुछ था। अगर होगा तो बाद में कभी देख लेंगे। सो दैट्स ऑल लिसनिंग। हैव अ गुड डे पीपल।